Okay, let's start. Last time we have started the performance parameters for the rectifiers, and we have discussed some of how the performance of a rectifier can be measured. We are there to the following values are important: the average output voltage, that is the DC voltage, output current, output power, and at the same time, and as the figure suggests, it is AC to DC converter. We have the output voltage like this. It is not the purely the sinusoid, purely the DC. We have some ripple contents in the voltage, and the other values, because there is a ripple in the voltage, we have RMS values of the current and voltage. We have defined some other parameters like efficiency, form factor, ripple factor. We already did that. And the most important is the transformer utilization factor. That is the ratio of the DC power to the secondary current and the RMS voltage and RMS current of the transformer secondary. And then the power factor and thrust factor. Okay, there are something is missing in this book, the latest edition. So I tried to elaborate. ये सिर्फ यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर दिया हुआ, ठीक है, तो हाफ वेव के लिए हमें इसके पुराने एडिशन की तरफ करना पड़ा। तो मैंने ये स्विच किया पुराने एडिशन की तरफ, आपको नजर आ रहा है? कैन यू सी द, आई चेंज द शेयरिंग, देख सकते हैं भी आप? Yes, sir. This is the half wave rectifier, ठीक है? In the case of half wave rectifier, only the one cycle of the input will be processed. As the figure suggests, the transformer, then we have a diode and resistor, only the positive half cycle will go through. You आप देख सकते हैं figure में. And this is the output voltage, and this is the waveform for the current, and this is the voltage across the diode. It means that the negative cycle will be clipped, then show in the output. And what will happen if you are told to calculate the performance parameter of the half wave rectifier? It means you need to determine the efficiency, form factor, ripple factor, transformer utilization factor, and PIV rating, peak inverse voltage rating of the diode, thrust factor of the input current, and the input power factor. So ये चीज you have already did in your electronics. कि एवरेज आउटपुट डीसी कैसे निकालेंगे? तो जो भी आपकी लोड वोल्टेज, इट विल बी उसका हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर द पीरियड, ठीक है, जो भी उसका टाइम पीरियड. वी ऑलरेडी नो दैट द टोटल पीरियड इज t, total time period is 2 pi, but the output is only shown for the pi period. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? This, if we look at this equation, 1 over t, 0 to t by 2 is just the same as the figure. ये आपके पास 2 pi है, but आपके पास इंटीग्रेशन के लिए वैल्यूज अवेलेबल है pi, और आउटपुट इज इन द form of the sinusoid with the maximum value p maximum. जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, we will have this kind of equation. उसमें जब आप values को plug in करेंगे, then the DC value will come out VDC. We already did this in your electronics, 0.318 V maximum. ठीक है? Similarly, the DC current can be calculated like this, 0.318, just divided by R. RMS value, root means scale value. Just you need to take the scale of the output and take the root of the whole. Okay. And just processing this, what will happen?
सेम चीज है, जस्ट आपको स्केयर लेना पड़ेगा आउटपुट और पूरी वैल्यू का स्केयर रूट करना पड़ेगा। तो आपके पास जो भी RMS वैल्यू दैट विल बी 0.5 V मैक्सिमम। इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो आपका DC वोल्टेज है दैट विल बी ओनली 31% ऑफ द V मैक्सिमम, और RMS जो है दैट इज हाफ ऑफ द V मैक्सिमम। अब हम परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। We already know that the DC value power DC power क्या होता है, V square over R होता है। तो DC है तो DC means DC power। तो यहाँ पे ये जो 0.318 that is VDC, उसका स्केयर डिवाइडेड बाय R। AC पावर क्या होती है, that is your RMS वैल्यू, RMS स्केयर over R। तो एफिशिएंसी के लिए VDC over AC, तो ये आपकी एफिशिएंसी है। I'm just highlighting this. This is the 40% form factor. This is the DC voltage divided by the RMS value, that is 1.57. Ripple factor is form factor scale -1. We already did that. It is not a big deal. But look at the issues. Usually at the ripple factor it is 121%. It's a huge. It is even the more than the output. The reason is that it's not the efficient rectifier. This is just used for the basics, to understand the basics. अब next you have सर इसमें स्केयर रूट क्यों लिया हुआ है? किसमें बताएं? सर VRMS वाले में। RMS वाले में ये चीज पूछी हम। जी सर यही। ये रूट मीन्स की वैल्यूज जो है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि रूट क्या होता है, अंडर रूट। मीन क्या होता है, मीन जो आप इंटीग्रेशन लेते हैं, और स्केयर क्या होता है, वट एवर इज योर आउटपुट वोल्टेज। तो ये उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। रूट ये देखिए 1/2, रूट मीन स्केयर। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर द AC को डायरेक्ट नहीं मेजर किया जा सकता, उसकी RMS वैल्यू में। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर पे जब आप AC पे रख के मेजर करते हैं, एक्चुअली दैट विल गिव यू द RMS वैल्यू। RMS जी सर। Next is the transformer utilization factor. Transformer utilization factor के लिए आपके पास you should have, if you look at the equation given over here, you need a AC power which you have already calculated over here, and then you need a secondary voltage and secondary current. तो RMS voltage of the transformer secondary, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मेजर करना पड़ेगा। अब ये सेकेंडरी पे आपने मेजर करना, नॉट द आउटपुट। प्लीज बी केयरफुल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ये जो आपने यहाँ पे RMS कैलकुलेट की, दैट इज द RMS वैल्यू ऑफ द आउटपुट, दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी। ठीक है, तो इसमें फर्क है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। This RMS is only one cycle that is clipped off, but here you at the secondary all the input will be processed to the secondary. इसमें आपके पास 1/t 0/t, ठीक है। जब आप इसको करेंगे तो it will be 0.707 V maximum. RMS value of the secondary current is the same as that of the load current, that is 0.5 V maximum over R. क्योंकि ये बात समझ आई है कि जो सेकेंडरी करंट है वो सेम क्यों होगा, विल बी सिमिलर टू द आउटपुट करंट। करंट उसी वक्त फ्लो करेगा ना जब डायोड कंडक्ट करेगा। ये एनीवन सिर्फ क्वेश्चन है यहाँ पे। करंट विल ओनली फ्लो व्हेन द डायोड विल कंडक्ट। Okay, that's why the secondary current and the RMS currents are same, but the voltage, output voltage and the secondary voltage is different, because for the output only one cycle will go. Sir, जी जी
सर हम इसमें रिवर्स लीकेज करंट की बात नहीं करेंगे, वो भी तो आउटपुट पे शो होता है। नहीं, फॉर दीज मेजरमेंट्स जो ये रेक्टिफायर है, यहाँ पे हम डायोड को आइडियल कंसीडर करते हैं। ठीक है, ठीक सर। ओके, फॉर द ट्रांसफार्मर रेटिंग, utilization factor, volt ampere rating, that is the VA, VSP, that is the VA rating. So these values को we will utilize these values over here. यहाँ पे इनको यूटिलाइज करते हुए we will put these values over here. तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर आपके पास आ जाएगा 0.286, that is only 28%. या आपका जो भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इन दिस केस, इन दिस रेक्टिफायर, द यूटिलाइजेशन इज ओनली 28%. इसकी मीनिंग बाद में हम देखते हैं. इसके मीनिंग्स एक्चुअली ये हैं, नीचे आपके पास नोट है, इसको ऑपोजिट करें 1/TUF, that is 3.4, signifies that the transformer must be larger than that what it is used to deliver power from a pure AC source. हाँ, बात समझ आइए. इसमें प्योर एसी सोर्स से जो पावर डिलीवर करनी है उससे इतना ही हैवी होना चाहिए. तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो होती है इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, जब डायोड रिवर्स बायस है तो उसकी क्रॉस वोल्टेज कितनी एम्पीयर होती है? We already know from our basic electronics knowledge, it's only V maximum. And for the cross factor, you already know that the formula is I peak over divided by this one. तो ये आपके पास पीक की वैल्यू ये है, सेकेंडरी की पीक, उसमें आप ले लेंगे और उसका जवाब RMS कंटेंट है, उसकी क्या वैल्यू, दैट इज 2. The input power factor for the resistive load can be found. Power factor is PAC divided by V. That is 0.5. We already discussed these definitions in the previous lecture. So that is 0.7. Okay. If you are asked to do this in the exam, you create the performance factors with the name given, finding the performance parameters. तो इसी तरह अब हम रेक्टिफायर डिस्कस करेंगे, उनके परफॉर्मेंस पैरामीटर. एनी क्वेश्चन, किसी को मसला है इसमें तो quickly ask. Anyone? I have already unmuted all of you. किसी को मसला है तो ask. सबको पता चल गया? यस सर। इतने लायक हो गए, वो कोई सी ले लेता आपका. Okay, let's move to the next. ये तो हमने सारे का सारा रेजिस्टिव लोड के साथ देखा. Now we will see what will happen when we connect an inductive load. So when we connect an inductive load, the inductor has the property, inductor की property है कि उसमें करंट आपके पास लैग है by a certain angle. And just forget about this diode for now. During the positive half cycle, this is your load voltage, and you can say this is your also input voltage. Since it's a half wave rectifier during the positive cycle, and similarly this is the voltage across the resistor. जो resistor की voltage होगी, that will be due to the current flowing through the resistor. और वो current क्या है, IL. This current is basically lagged by this, lag करेगा due to this inductor. You can clearly see this is the input waveform V. However, the voltage across the resistor, as you can see, it is lagged by a certain angle.
even if your diodes has stop conduction, it's still current is still flowing through the resistor. जो आपकी इनपुट आ रही है sinusoid, even this stops conduction, but the thing is that since current is lagged by this inductor, तो ये delay करेगी wave. See, at the same time the voltage across the diode. Issue क्या होगा? अब कैसे lag करेगी? Since you have a diode over here, ये वाला diode है, अगर यहाँ पे इंडक्टर ना होता तो देन डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज आती है, दैट इज द कंप्लीट नेगेटिव हाफ साइकिल. However, the issue is that since this current is lagging, the current is still flowing through a circuit, even if this has crossed, voltage has crossed this point. However, until unless this current is completely diminished through a circuit, ये करंट completely diminish जब तक नहीं होता सर्किट के अंदर से, this diode cannot stop conducting, ये stop नहीं कर सकता. तो यही चीज है, देखिए वो आपके पास करंट फ्लो करता रहा, जैसे ही यहाँ पे करंट आपके पास जीरो होगा, लो करंट, then the diode has stopped conducting and your voltage of the diode appear like this. This problem can be eliminated if we connect a freewheeling diode. पहले ये diode नहीं था. If we connect a freewheeling diode, then this problem can be eliminated. What will happen? Then in this case, this lagging current will find a path. इस current को एक path मिल जाएगा, and it will flow through this path, and immediately the negative voltage will be built across the diode. यहाँ पे देखिए D1 कंडक्ट करेगा, तो ये जब यहाँ पे नेगेटिव स्पाइक आ जाएगी, it will be immediately turned off. Reason is that this is negative, this is positive, this is at a higher potential. So current will always follow the easiest path to इस डायोड के थ्रू कंडक्ट करना शुरू कर देगा. ठीक है, पहले क्यों नहीं कंडक्ट कर रहा था? सिंस पॉजिटिव इज हियर, तो ये इसकी पोलैरिटी इसको अलाउ नहीं करेगी यहाँ से कंडक्ट करने. नाउ डोंट हैव अ पॉजिटिव ओवर हियर, सिंस द पोलैरिटी हैज बीन रिवर्स्ड, तो ये इसको सपोर्ट करेगा. लैगिंग की प्रॉपर्टी तो स्टिल रहेगी, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास ये वेवफॉर्म रेगुलर हो जाएगी. ये बात समझ आई है किसी को? Anyone has question? हाँ जी, anyone? खुरम साहब समझ आ रही है? जी सर. आपको काफी याद करते रहे, आप थे नहीं है जी. तो सर मैं थोड़ा लेट था सर. अच्छा, ऑफिस पहुंच गए? जी सर. कब तक चलेंगे? नहीं, घर पे ही हैं सर अभी. अभी मेरी तरह ही लेट हो गए. Anyone has a question? नो सर. ये जाग रहे हैं सारे वैसे? जी जी सर जाग रहे जी हैं. सर. जाग रहे हैं. अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जो हमने एलसी सर्किट था उसमें टाइम पीरियड की जो इक्वेशन यूज हुई थी वो ये थी, पाई और ओमेगा. तो ओमेगा हमने जो इक्वेशंस की मैनिपुलेशन थे वहां से वहां 1/LC अंडर निकाला, वो हमने प्लेस किया था, तो आपके पास वहां एलसी सर्किट के लिए आई. दैट इज अ रिमाइंडर फ्रॉम द एलसी सर्किट. और नेक्स्ट अभी ये है कि हम देख रहे हैं इसको, तो इसमें आपके पास एक चीज बड़ी अहम है, जो आपका डायोड कंडक्ट कर रहा है, the DC value, it depends on the angle 0 to pi plus sigma. ये देखिए, अगर हम देखें तो it is actually conducting more. अब आप देखें जो रेजिस्टर के क्रॉस आपके पास वैल्यू आ रही है,
देख रहे हैं ये वोल्टेज, द लोड वोल्टेज इज एक्चुअली, देखें आप वेवफॉर्म आपके सामने है, जी सर। is actually extended. So in the case, then your limit will be extended like that, pi plus sigma. Okay. तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, just solve this integral, इसी वैल्यू के लिए मीन वैल्यू होती है ना आपके पास, तो it will be, the output will be like this. आपका एवरेज लोड करंट जो होगा इसकी इक्वल होगा, that is just the repetition of the previous. ये सारी की सारी एक एक्सप्लेनेशन है कि अगर फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाएंगे तो ये कैसे काम करेगा, which I have already told you. इससे एक बहुत बड़ी अच्छी सी इंटरप्रिटेशन निकलती है कि if we connect this half wave rectifier, ये नेक्स्ट से एग्जांपल है, if output is connected to the battery, अगर हाफ वेव की, this is different from the, this is, यहाँ से एक डिफरेंट चीज स्टार्ट होगी, ओके। तो इसको एज ए बैटरी चार्जर यूज करना चाहें तो बैटरी उसी वक्त चार्ज होगी देन व्हेन दिस वोल्टेज इज ग्रेटर देन द कनेक्टेड बैटरी, सो दैट द करंट कैन फ्लो थ्रू इट। तो V maximum sin alpha is equal to E. This is actually condition the angle alpha when diode start conducting can be found from the equation. अब ये इक्वेशन कैसे आई है, we will see. ये एक उसका वेवफॉर्म है सर्किट की, I will note वेवफॉर्म में देखिए, दिस इज द सेकेंडरी वोल्टेज। आप डायग्राम को थोड़ा सा I will note, डायग्राम को केयरफुली देखिए। तो दिस इज योर सेकेंडरी वोल्टेज एंड दिस इज सेकेंडरी माइनस द बैटरी। तो बैटरी को जब माइनस करेंगे तो देन दिस वोल्टेज विल बी क्लैम्प डाउन। तो ऑफ कोर्स बैटरी पे कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा ना, तो द सेकेंडरी वोल्टेज शुड राइज टू द पॉइंट देन इट स्टार्ट कंडक्टिंग। तो वोल्टेज से ज्यादा होगी तो इसमें से करंट फ्लो कर सकेगा ना पॉजिटिव साइकिल में। तो ये इसको क्लैम्प डाउन कर देगी एंड दिस, यहाँ पे ये देखिए नीचे क्लैम्प डाउन होगी, यहाँ पे पिन होगी ये पॉइंट, then the ultimately voltage will be like this. और जो आपका कंडक्शन करंट है, that is we already know that the only positive cycle will go through this. तो पॉजिटिव साइकिल में जो पार्ट आएगा that is अल्फा बीटा के दरमियान, that is plotted over here. बात समझ आई है नहीं? ये आपके सेकेंडरी वेवफॉर्म है, that is with the, ये इस बैटरी को ऐड करते हुए जो वेवफॉर्म बनेगी। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में ओनली वन साइकिल विल पास, तो वो साइकिल ये यहाँ से स्टार्ट होगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस बैटरी, ठीक है, दैट इज कंडक्शन इज फ्रॉम अल्फा टू बीटा। नो लेट्स मूव। तो ये देखिए आपके पास जो वेवफॉर्म थी V मैक्सिमम साइन अल्फा, तो जो आएगी जो नो रेजिस्टिव, आप देखिए V मैक्सिमम साइन अल्फा, तो आपके पास ये चीज होगी वो सारी की सारी इसके क्रॉस हो जाएगी, ठीक है, सिंस करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम साइन अल्फा जो कंडक्शन एंगल है वो इसको चार्ज करेगा। व्हाट विल हैपन, तो यहाँ से हमने अल्फा निकाल लिया एंड व्हेन डायोड इज टर्न्ड ऑफ, जब डायोड कब टर्न ऑफ होगा, देन V सेकेंडरी, जो सेकेंडरी वोल्टेज लेस देन द चार्ज ऑफ द बैटरी। तो ये बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा इज पाई माइनस अल्फा, ये इक्वल साइन है यहाँ पे, ठीक है, बीटा इज पाई माइनस अल्फा। अगर आप और से देखिए बीटा इज, ये जो बीटा है यहाँ से यहाँ तक है टोटल, ठीक है, दैट इज पाई माइनस अल्फा, ये दोनों तरफ का इक्वल है। बात समझ आ रही है नहीं? जी सर। and then the current, charging current क्या होगा, Vs जो फ्लो करेगा माइनस E डिवाइड बाय R। तो Vs आपके पास क्या है, V मैक्सिमम साइन ओमेगा t माइनस। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। भी हमारे पास 2-4 मिनट है, साथ ही इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है, ये जो हमने बैटरी चार्जर देखा है इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल में आपके पास एक वैल्यूज गिवन होगी, आपके बैटरी पे चार्ज कितना है, करंट कितना है,
एवरीथिंग इज गिवन। अब तक हमने लेक्चर में क्या डिस्कस किया, परफॉर्मेंस पैरामीटर कैलकुलेट किए हैं और विद द हेल्प ऑफ द इंडक्टर, यानी if we connect the RL load to the output rectifier, then what will happen to the waveform? फिर फ्रीव्हीलिंग डायोड कनेक्ट करने से वेवफॉर्म में क्या इंप्रूवमेंट आएंगे, एंड हाउ दिस RL लोड विल अफेक्ट योर DC वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज if we use this half wave rectifier as a battery charger, then what is the condition for that and how it will work। यहाँ पे आपके पास ये देखिए, ये स्टेटमेंट है, बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट है, कैपेसिटी 100 वाट आवर है, एवरेज चार्जिंग करंट इज 5 एम्पीयर, इनपुट वोल्टेज इज 120 एंड ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियो, इससे आप सेकेंडरी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडक्शन एंगल आपने बताना कि कितनी देर के लिए डायोड कंडक्ट करता है। ठीक है, दैट इज ट्रिकी, द करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, पावर रेटिंग ऑफ द रेजिस्टर एंड चार्जिंग टाइम, रेक्टिफायर एफिशिएंसी एंड पीक इनवर्स वोल्टेज। अभी मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है, 10 मिनट की ब्रेक होगी, उसमें आप इसको देखिए, इस प्रॉब्लम को, पानी खाने पिए, तो फिर देन वी विल रीजॉइन। ओके, अब मैं इनविटेशन दोबारा सेंड कर दूंगा और आपके पास है तो ही विल शेयर यू ऑन द व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू वेरी मच।